Good morning, students. Hope you all are fine. Myself, Meenakshi, your biology teacher from Sanskar Valley Public School. So, today we're going to start the chapter 1, the living world. And we should have the basic knowledge about the living and the non living, isn't it? So, living, you know that they respond to growth, development, any kind of stimulus, and non living things, they do not respond to any of such stimulus, isn't it? They even don't move, they don't show any kind of development or adaptation or reproduction. So we know that life is a unique and complex organization of molecule that expresses itself through the chemical reaction, which leads to growth, development, reproduction, adaptation, isn't it? So you can see here, when we try to define the living, we conventionally look for the distinctive characteristic exhibited by the living organism, isn't it? So these living organism exhibit some special characteristics such as growth, reproduction, ability to sense environment. I told you about the stimulus, so they can respond to the stimulus. You have studied about this movements in your 10th class, like the plant respond to any of the stimulus in a directional way, so it can be a tropism, and in non-directional way, so it is a nasty. So one can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. So you know that all living organisms grow. They increase in mass, they increase in numbers of individual, are twin characteristics of growth, right? So organism basically they grow in size, you can say, in mass, you can say, isn't it? So organism, the number of cell duplicate itself, they reproduce and increase in number, right? Okay. Grows by cell division. In plants, these cell growth by cell division occur continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen only up to certain age. यस, सो ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी प्लांट में, तो ये कंटिन्यूस होती है. आप देखोगे हर सीजन में प्लांट में न्यू लीव्स फॉर्म होती हैं, बार्क फॉर्म होती है, पतझड़ आता है तो पत्ते झड़ जाते हैं, फिर बार्क जो है ट्रीज की वो उतर जाती है, तो कंटिन्यूस उसमें ग्रोथ होती रहती है. लेकिन एनिमल्स के अंदर ये एक सर्टेन एज तक होती है, इजंट इट? आपने देखा है कि सबसे पहले आपका आता है जनरली जुवेनाइल फेज, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, एंड देन सेनेसेंट फेज, एंड फाइनली डेथ. However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell. कहीं इंजरी हो जाए एनिमल सेल में तो उसके लिए रिपेयरिंग होती है, तो सेल डिवीजन वहाँ पे हो रही है उन टिश्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए जो हम खो चुके हैं. सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन. यू नो दैट बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, सो दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं. One can easily observe this in the in vitro culture by simply counting the number of cell under the microscope. सो यू कैन ईजिली डू इट इन विट्रो कल्चर, मतलब बाहर लैब में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आप देखोगे कि बैक्टीरिया जो है वो 1 से 2 में, 2 से 4 एंड 4 से 8 में डिवाइड हो रहा है. Majority of the higher plants and animals, growth and reproduction are mutually exclusive events. One must remember that increase in body mass is considered as growth. क्लियर? सो बहुत सारे ऐसे हायर एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, जहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही म्यूचुअली एक जैसी आप कह सकते हो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इजंट इट? लाइक अगर आप कहोगे कि ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं. सो रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, वो जो नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे बने हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जाइगोट बना है, स्पर्म आ गया है, गैमेट ओवम आ गया है, दोनों फ्यूज कर गए, जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होगी, तब जाके हम कहेंगे कि वो ग्रोथ हो रही है, राइट? सो one must remember that increase in body mass is considered to be as the growth. Non-living objects, if we take increase in body mass as certain criterion for growth, mountains, boulders, sands, mound do grow. तो यहाँ पे अब नॉन लिविंग्स के बारे में बात की गई है कि जो नॉन लिविंग्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बेसिकली आप कहोगे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उनके अंदर भी ग्रोथ यहाँ पे देखी जा रही है. लाइक माउंटेन्स के अंदर सैंड कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही है, इजंट इट? सो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पे नॉन लिविंग के अंदर करेक्टरिस्टिक ग्रोथ देखी जा रही है. दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस. यू कैन से किसी भी चीज़ का सरफेस पे कुछ जमा होना, तो इस तरह की ग्रोथ इन चीज़ों में देखी जा रही है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड.
ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि यहाँ देखिए हमें एबायोटिक में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, एंड ग्रोथ बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म है अंदर से है, इट इज़ फ्रॉम इनसाइड, right? So condition under which it can be observed in all living have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. So dead organism do not grow, only living one. So next is reproduction. Reproduction like is a characteristic of all living organism. In multicellular organism, reproduction is refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. You know that very well. In the last chapter, I have explained you about the mitosis and meiosis. So, mitosis में number of cell increase हो रहे हैं, वो चाहे आप repairing के लिए कह लो, चाहे सोमैटिक सेल्स के अंदर डिवीजन कह लो, मास इंक्रीज के लिए कह लो, और हम जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें 2 डिफरेंट गैमेट्स आते हैं, वन फ्रॉम फादर, वन फ्रॉम दी मदर. सो वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल. यू नो इट क्लियरली, इजंट इट? सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे जो यूनिपेरेंट है वही डुप्लीकेट करके आपको जो है डॉटर सेल रिप्रोड्यूस करके देता है. Invariably, implicitly we refers to the sexual reproduction. Organism reproduced by asexual mean also. Fungi multiply, spread easily due to millions of asexual spores they produce. In living organisms, in lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. Yes. So, reproduction is the formation of new individual of the same kind. You can say. So, life arises from pre-existing life. You remember the cell theory. Yes. So reproduction is not essential to survive, isn't it? It's required for life on the earth. So reproduction is not necessary to live. It is necessary to maintain life on the earth, you can say. So ability for reproduction develops when young individual become mature. I told you कि एक different phases होते हैं एक organism के living span में. Juvenile phase, reproductive phase, senescent phase. Juvenile phase में वो अपनी ग्रोथ कर रहा है, और जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव फेज में आता है तब वो जब मैच्योर हो जाता है तब वो एबिलिटी हो जाती है उसके पास रिप्रोड्यूस करने की. सो अब ये जो रिप्रोडक्शन है इसको हम 2 तरह से डिवाइड कर दिया कि एक यूनिपेरेंटल होता है, एक बाय पेरेंटल होता है. यूनिपेरेंटल हमारा एसेक्सुअल है, बाय पेरेंटल हमारा सेक्सुअल है. इसमें गैमेट्स नहीं बन रहे हैं एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में गैमेट्स बन रहे हैं कि 2 डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहा है. अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है सच एज ईस्ट, हाइड्रा, इनके अंदर हमें बडिंग देखने को मिलती है. यू रिमेंबर बडिंग? एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक छोटी सी आउटग्रोथ आ जाती है, एंड दिस आउटग्रोथ इज नोन एज बड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग, है ना? काफ़ी बार हम कर चुके, 8th में हमने पढ़ा, हमने 10th में इसको डिटेल में स्टडी किया. सो ईस्ट एंड हाइड्रा के अंदर क्या होती है? बडिंग. अब प्लेनेरिया है जैसा जो ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर हमने पढ़ी थी रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या था? रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म अपने जो लॉस्ट पार्ट है उसको रीजनरेट कर रहा है, इजंट इट? हाँ. तो इस एग्जाम्पल इसमें था हमारा प्लेनेरिया कि जो उसके लॉस्ट पार्ट है उसको दोबारा वो न्यू फॉर्म कर रहा है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन. क्लियर? अब इसमें हमने ए सेक्शन में हमने फ्रैगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, और हर एक फ्रैगमेंट एक सर्टेन ग्रोथ होने के बाद जो है वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है, एंड ईच फ्रैगमेंट बिहेव एज अ न्यू इंडिविजुअल, एंड दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन. ठीक है? एग्जाम्पल इसमें ग्रीन एल्गी में स्पाइरोगायरा. क्लियर? एंड व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ. यू कैन से रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ. यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस डिवीजन के कारण और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के कारण 2 में डिवाइड हो रहा है. ये सेल डिवीजन भी हो रही है और ये ग्रोथ भी हो रही है. ठीक है? सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, डिवीजन भी हो रही है, नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, रिप्रोडक्शन भी और ग्रोथ भी. So we have already defined growth as the equivalent increase in the number of cell as a number of cell and mass. So we notice that single cell organism, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. So we are not sure कि इस चीज़ को हम growth कहें या reproduction कहें, दोनों ही synonymous हैं एक दूसरे के. Further, there are many organisms which do not reproduce, like mules हैं,
स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्लियर? सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे डोंट हैव पावर टू रिप्रोड्यूस। ठीक है। नेक्स्ट, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट डू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म जितने भी हमारे आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म है, दे ऑपरेट अ नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन देयर बॉडी। क्लियर? जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, एंड दीज केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ अबाउट द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। जितनी भी एक्टिविटी है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना, रिप्रोडक्शन, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑब्जेक्ट है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं इन द सेल। ठीक है, इन द सेल। एंड ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कैटाबॉलिज्म, द अदर वन इज एनाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म इंक्लूड द बिल्डिंग अप रिएक्शन, यू कैन से। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब है बिल्डिंग अप, किसी चीज़ को बनाना। सपोज फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे फॉर्म ग्लूकोज। तो दिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस वेयर समथिंग इज फॉर्मिंग। क्लियर? सो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इसको बोल सकते हैं हम, एनाबॉलिज्म। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस से फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस में हम देख सकते हैं कि CO2 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज। सो यू कैन से दिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, राइट? नेक्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में यानी ब्रेक डाउन, कट, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूटते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन में होता है। क्या होता है रेस्पिरेशन में? हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, इजंट इट? सो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है बेसिकली ग्लूकोज, वो किसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसमें चेंज हो रहा है? CO2, वाटर एंड एनर्जी। सो इट्स ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, सो अगर हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को डिफरेंशिएट करें तो यू कैन सी कि एनाबॉलिज्म जो है वो बिल्डिंग अप रिएक्शन है, कैटाबॉलिज्म जो है वो ब्रेक डाउन रिएक्शन है। ठीक है, एंड जो एनाबॉलिज्म है उसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनता है, यहाँ पे सिंपल कैटाबॉलिज्म में सिंपलर बनते हैं फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स वन। एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होती है और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बेटा, सो दैट्स अबाउट द मेटाबॉलिज्म। सो जितने भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड वेरियस metabolic reactions. So in the next class we going to discuss about the consciousness and the organization which counts for the living world. Clear? Thank you so much and stay home, stay safe.